Hello students, in this video we are going to discuss about brain anatomy. So as we all know that brain is the central organ of the central nervous system or central part of the central nervous system that is located in the skull bone. Our brain is divided into three parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is further divided into two parts, that is telencephalon and diencephalon. Midbrain is divided into mesencephalon and hindbrain is further divided into two parts, that is metencephalon and diencephalon. Now, telencephalon consists cerebral cortex, basal ganglia and limbic system. Same, diencephalon consists thalamus and hypothalamus. These are the parts of the brain that is located in the cerebrum and where in forebrain. So midbrain consists tectum and tegmentum. Hindbrain consists cerebellum, pons and medulla oblongata. Now first part is forebrain. So in forebrain, telencephalon we will discuss first. So telencephalon, it is the outermost portion of the brain that is known as telencephalon and it is larger than the diencephalon. Next is cerebral cortex. So what is cortex? Any outer area, any outer layer of any organ is known as cortex, and here we are discussing about brain, so cerebral cortex. So it is the outermost layer of the brain. Cerebral cortex is useful in controlling the various processing centers or the information processing centers. Next, it is also responsible for the motor sensory information or the processing and the cognitive processing. Now next is cerebrum. So what is cerebrum? It is the largest portion of the brain. Largest portion of the brain is known as cerebrum. So cerebrum consists of the cerebral cortex. जो cerebral cortex हमने previous slide में पढ़ा वो क्या था कि outermost layer of the brain is known as cerebral cortex और outermost layer of forebrain. इस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? सेरिब्रम प्रेजेंट रहता है और इस सेरिब्रम के अंदर जो हमने पार्ट्स पढ़े थे टेलेंसिफेलॉन के, तो टेलेंसिफेलॉन्स के जो पार्ट हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट हुए? सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और द टू हाफ्स व्हिच वी नोन एज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर. कोई भी आपने डायग्राम देखा होगा ब्रेन का तो आपने देखा होगा कि ब्रेन का डायग्राम कैसे दिखाया जाता है. दो हेमिस्फेयर्स आपको दिखते हैं जो कि बीच में थोड़ा सा पार्टीशन रहता है. तो पार्टीशन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? वो होता है सेंट्रल सेल्कस की वजह से, और जो दो वो हेमिस्फेयर हैं उनको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर. Cerebrum is responsible to receive sensory input from and send motor output to other side of the body. So messages को receive करने का काम और brain तक पहुंचाने का काम, various parts of the brain तक पहुंचाने का काम cerebrum का रहता है. उसके बाद में जो भी information उन्होंने ली, input की, उसको in the form of output various parts तक पहुंचाने का काम भी किसका रहता है? cerebrum का रहता है. For example, आप किसी भी hot object को अगर टच करते हैं तो वो अगर आपने हाथ से उसको टच किया तो हाथ से वो मैसेज कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा. सो ब्रेन को इनपुट गया कि पर्सन ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, ये मैसेज पहुंचाने का काम. और जब ब्रेन उसको एनकोडिंग कर लेता है उसकी और ये डिटेक्ट करवा लेता है कि वो कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट टच किया था वो गर्म था, उसके बाद में हम एकदम से अपने हाथ को हटा लेते हैं. क्यों हटाया? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल दिया कि वो ऑब्जेक्ट हॉट था और उससे हम जल सकते हैं, बर्न हो सकता है हमारा हाथ. तो ये इनपुट और आउटपुट मैसेजिंग का जो ट्रांसफर हुआ, इसके लिए कौन सा बॉडी का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है. नाउ what are the functions of the hemispheres? So as I told you that cerebrum is divided into two hemispheres that we call right hemisphere and left hemisphere. So what are the functions of right hemisphere? Right hemisphere is useful in understanding and remembering things
we do and see. So कुछ भी हम देख रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं और हमें याद रहता है कि आपने कल क्या करा, आपको याद है आपने परसों क्या किया था, तो ये सारी चीज़ों को रिमेंबर करवाने का और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं उन चीज़ों को, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइट हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट इज पुटिंग, it is helpful in putting bits of information together to make an entire picture. आप कोई भी पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी इमेज आप देख रहे हैं और आप ये एनालाइज कर पाते हैं कि आपने क्या देखा, ये आप ये लगा पा रहे हैं कि आपने किसी एनिमल की पिक्चर देखी, आपने किसी नेचर की पिक्चर देखी, तो आपका ब्रेन ये एनालाइज कर पाया, ये डिटेक्ट कर पाया कि आप क्या देख रहे हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है? राइट हेमिस्फेयर हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पोर्शन जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है. एंड वाइस वर्सा, मींस जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होगा वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करवाने के लिए, राइट साइड ऑफ द बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है लेफ्ट हेमिस्फेयर. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर इज अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. तो समझना और फिर कैसे लैंग्वेज का यूज करना है. लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ हम लिसन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, इन सारी चीजों को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर का काम होता है. नेक्स्ट फंक्शन इज मेमोरी फॉर स्पोकन एंड रिटन मैसेजेस, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. एंड लास्ट इज इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी. So it was about the today's video, functions of the hemisphere, cerebrum, cerebral cortex, forebrain and different parts of the brain. In next class we will discuss about the various lobes of the brain. So it was all about today's video.